Hello, all the viewers, and you're watching Elegant Eye Media's podcast Rubaru with Anu. And today also we are still on the educational tour with Mrs. Jyoti Doraiswamy. Let's continue the chat with her. Hello and welcome, ma'am, to the Hi. our educational tour. Thank And you so you are much. selling us with a very good flow. And all the students are really curious now क्योंकि आज हम जो बात करने वाला है, जैसे मैंने बोला 10th के बाद हो गया, 12th के बाद क्या. इंटीग्रेटेड ले लिया, इंटीग्रेटेड कर दिया है, तो क्या मतलब अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर दिया है, नीट का रिजल्ट आने वाला है. काफ़ी बच्चे होंगे कि नीट में नहीं कर पाएंगे, नहीं क्रैक कर पाएंगे. तो जैसे आपने बोला था लास्ट एपिसोड में भी कि फॉल ऑफ ऑप्शंस आप देते हैं. सो व्हाट आर द फॉल ऑफ ऑप्शंस, उससे हम लोग चालू कर सकते हैं क्योंकि साइंस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रीम और उसके लिए काफ़ी बच्चे शायद आपके पास भी आते होंगे कि व्हाट आर माई ऑप्शंस. सो क्या बताएंगे इसके बारे में? राइट. तो साइंस को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इट इज PCM एंड PCB. राइट. तो अगर PCB बच्चे लेते हैं तो PCB में व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट. तो नीट वर्सेस अदर कोर्सेज. ठीक है. तो नीट अगर बच्चों ने लिखा और उनके मार्क्स कम आए तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, तो वो हम देखते हैं. वन इज अगर नीट में ही अगर हम देखेंगे तो नीट में मार्क्स कम आए बट फिर भी डॉक्टर ही बनना है तो देर आर ऑप्शंस इन दैट. आप होम्योपैथी ले सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, डेंटिस्ट्री ले सकते हो, होम्योपैथी ले सकते हो, आयुर्वेदा, ओके, नेचुरोपैथी, ओके, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज. ये नहीं है अगर आपको मेडिसिन में ही जाना है, आई मीन यू वांट टू बी इन द हेल्थ सेक्टर बट यू डोंट हैव अ गुड नंबर मार्क्स, तो आप फार्मेसी कर सकते हैं. ठीक है. एंड यू कैन डू बायोमेडिकल साइंस. ठीक है. बायोमेडिकल साइंस इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव बूमिंग करियर. इसमें भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ये हुआ इफ़ यू आर गेटिंग, एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है. सो वेयर यू कैन गेट इन टू मेडिसिन itself, I mean into the health sector, like BSc programs in audiology होगा, optometry हो गया, या फिर anesthesia हो गया, diabetologist, okay, then nutrition, that is again which is booming now. So these are the other areas. Then of course radiology and all is there. Yes. So kids can definitely consider these career options also. अब ये हुआ health sector. In case kids do not want to get into health sector, what are the other options that are available? अगर बच्चा math में बहुत अच्छा है and bio plus math is a very good option. Bio plus IT is a very good option. Okay. So bioinformatics or they can take biocomputation, biostats. ये सब these are very lucrative career. You have to always think one thing is that अभी जो करियर है ना, we have to think futuristically. कौन से careers next 5 years 10 years are going to be in high in demand. Okay. So AI related बहुत आ रहे हैं. So AI, how can you apply AI in biology stream or in the healthcare? That's another booming career. Which the students must explore. Right. So first and foremost, explore what are your areas of interest, what are your subjects of interest. फिर उन दोनों को integrate करके you can make a career. So as I told you, like if you like math, take biomath, biocomputation, biostats, okay, bioinformatics हो गया. If you like design, you can combine something in design too. Okay, psychology is being liked by, BSc psychology can be taken to become a clinical psychologist. So these are the other career options that are available. Besides that, you can also consider something like data science, okay, IT. These are other areas. That is something which is more relating to data. Okay. If a student is taking something like math, so PCM ले लिया, JEE में अच्छे marks नहीं आए, they can always go for something like bachelor's in computer applications. Okay. इसके साथ they can always combine design. Supposing students are liking something like game designing, okay, they can take a BTech program and then do a MDes in design to become a गेम डिज़ाइनर, गेम डेवलपर है. तो गेम डेवलपर अगर बनना तो बीटेक करके फिर यू कैन डू अ मास्टर्स इन गेम डेवलपमेंट. तो वो लोग खुद गेम डिज़ाइन डेवलप करते हैं, तो वो कर सकते हैं. देन बायो टेक्नोलॉजी आ गया, वेर यू कंबाइन बीटेक. इट्स अ बीटेक प्रोग्राम इन बायोलॉजी. सो कमिंग दैट्स मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Biomedical engineering is available. Genetic engineering is available. Solar engineering is available. So these are the other areas in engineering. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस ही करना है. बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन डू दीज थिंग्स. इसमें BSc प्रोग्राम्स भी अवेलेबल, लाइक जेनेटिक्स अवेलेबल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अवेलेबल है. ये सारी चीज़ें जो है यू कैन कंबाइन IT विथ
biology, or you can only do something in BSc programs. राइट जैसे कि आपने अभी बोला कि बीएससी प्रोग्राम्स, तो काफ़ी बच्चे क्या हो जाता है कि नीट कर दिया है लेकिन उसमें क्रैक नहीं कर पाया, जेई नहीं हो पाया, सो दे हैव लाइक लेफ्ट ओनली विथ डूइंग बीएससी, बट उनको सिर्फ बीएससी नहीं करना होता है, उनको चाहिए होता है कि उसमें तो कुछ एटलीस्ट मैं कर लूँ, तो उसके लिए बीएससी प्लेन करने से बेटर कुछ अलग ऑप्शंस उसमें भी अवेलेबल है साथ में? अभी there is something called as liberal arts program. ओके Abhi liberal arts program, it's there. There are very few colleges in India, like you have Ashoka University, Flame University, Shiv Nadar, Symbiosis. These are few NMIMS. These are few universities which offer liberal arts program. Abhi isme hota kya? In the first year, the child is made to explore various subjects. Okay, उसमें से फिर second year में they do a major and a minor. अगर मान लो एक बच्चे को if a student wants to do something in biology. And he takes math also. So he can do a major in math, biology, and a minor in math, vice versa also. अच्छा, okay. Biology and computer science. Okay. There are options available like biology and history also. अच्छा, okay. So students can take any of these options. Similarly, if you take with biology with English, that is also option is available in universities. Biology with psychology is option is available. Okay. तो वैसे कंप्यूटर साइंस अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको आईटी में आई मीन बीटेक नहीं मिल रहा, देना, हाँ. तो यू कैन टेक कंप्यूटर साइंस विद फाइनेंस, यू कैन टेक कंप्यूटर साइंस विद math, Okay. computer science with even commerce subjects, humanity subjects also. So these are the various options. इसके अलावा there is something called as actuarial science. अगर बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, he can also do BSc in actuarial science. He can become a sports analyst, he can become a political analyst, he can become a business analyst. Okay, there's so much of options available as an analyst. Okay. Risk management. Okay. इंश्योरेंस में तो रिस्क मैनेजमेंट तो Right, लगता ही है, right. तो रिस्क मैनेजमेंट. So even if it's in a science stream, he can take it. In fact, there are colleges which are offering BSc program in math, stat and economics. Okay. ऐसे combinations भी हैं. So अच्छा. even if you have taken 11, 12 Science. science, you can still go into this. ओके. और जैसे आपने अभी बोला कि ये हो गया पीसीएम पीसीबी हो गया, लेकिन मतलब मैथ्स में और बायोलॉजी में आपका ये करियर हो सकता है, फिजिक्स में भी देयर आर लाइक एनी अपॉर्चुनिटीज There are लाइक दैट? lots of career options available. अगर कोई somebody loves aeronautics, एग्जैक्टली. somebody loves space, physicist. For all of these options, BSc physics is very good option. ओके. You can also, if you love physics, math, okay, and you have an artistic streak, you can take architecture. हाँ राइट. Okay, besides all of this, something like forensic science is available. Okay, BSc in forensic science, merchant navy is available. Okay, they can get into that. For that they need to do BSc in nautical science or BTech in marine engineering. ये कर सकते हैं. Fishery is picking up a lot of attention now. Agricultural scientist. ओके. You can even take sports science. Okay, that is another option in BSc. So irrespective of the fact whether you are from a biology or not, you can still take these careers. Okay. But of course, something like merchant navy, you need to be PCM. Architecture, you have to be PCM. Okay. Forensic science, you can be PCB. अच्छा. So you have to like आपको जो करना है उसको पहले आपको you have to decide on that. So that is the most important thing after 10th is deciding whether you want to go for science. And then next point is deciding between biology and math. Math. एक बार वो हो गया, then you have set the career path largely. Right. सो बेसिकली ये साइंस की स्ट्रीम के बारे में अगर हो गया, तो बाद में अगर हम बात करेंगे ट्रेडिशनली इन कॉमर्स फील्ड, जैसे कि अभी 11th-12th में कॉमर्स लिया है बच्चों ने, तो कॉमर्स में भी प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं 12th के बाद, तो उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या है, या फिर जैसे अगर होता है कि चलो अभी कॉमर्स ले ही लिया है तो बच्चा CA बन के ही बाहर आएगा, ऐसे पेरेंट्स का भी थॉट होता है, शायद बच्चे भी वही पाथ पे निकल जाते हैं. बट इज इट पॉसिबल कि ये ट्रेडिशनल थिंग्स छोड़ के भी कॉमर्स पे भी एक अच्छा करियर, अलग करियर बन सकता है? हाँ, पहले 12th के बाद हम लोग हमेशा सोचते BCom ही एक है कोर्स. यू कैन डू BMS, यू कैन डू BBA और यू कैन डू BCom. तो ये तीनों कैसे डिफरेंट हैं? तो फर्स्ट इज BCom. दोज हू वांट टू बिकम एन, जिनका मैथ अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छा है, वो बच्चे फिर दे कैन टेक समथिंग लाइक BCom, क्योंकि इट विल बी मोर रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी. राइट. Okay, they can make a career in finance or they can make a career in CA कर सकते हैं, फिर CFA कर लिया, ये सब कर सकते हैं.
CA, CFA, FRM, अभी ये क्या है मैं वो बताती हूँ. या तो CA तो हमारा रूटीन Routine सबको course पता ही है, है. नेक्स्ट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, दैट इज CFA प्रोग्राम. CFA, ये बच्चे हैं ना, along with graduation they can do it. अच्छा There are different levels. They can prepare for it accordingly, and they can become a risk manager, portfolio management, investment management. Okay, ये सब बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ये सभी चीज़ों में वो लोग जा सकते हैं. यस 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 फॉर दिस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि BCom ही करना चाहिए. दे कैन डू इवन BBA और BMS ऑल्सो. या क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड्स एंड SIP का जमाना है तो आई थिंक उसके बारे में ऐसे भी सोचना बहुत जरूरी है. यस यस यस. तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको CA ही करना Actually, है, ऐसे भी कर सकते हैं. दूसरा है BBA. अगर वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी, समथिंग लाइक बिजनेस स्टडीज, अगर बिजनेस स्टडीज ले रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब BBA में आता है. तो नॉर्मली बच्चों को कैसा लगता है कि अकाउंट्स आना चाहिए. अगर अकाउंट्स नहीं है, यू आर गुड विद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, तो फिर समथिंग लाइक BMS और BBA इज गुड. BBA एंड BMS इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इच अदर. हाँ. तो इसके बाद भी आप CFA कर सकते हो या फिर CIMA कर सकते हो. मतलब ये none of these are restricted. You can do all of these courses. BCom primarily takes you to something like CA. ओके But after BBA also you can take. अभी हुआ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज. अभी नॉन प्रोफेशनल कोर्स में एक रह गया, वो है लॉ, कॉर्पोरेट लॉ. राइट Okay, so the students can even prepare for LLB after their graduation. या 12th के बाद 12th के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया है where they can do BBA plus law. ओह इज इट. हाँ. ओके तो दैट्स अ 5 year कोर्स. 5 years course, yeah. हाँ. तो मतलब नॉर्मली BBA करके फिर अगर आप लॉ करोगे तो 6 years होता है. अगर आप BBA के बाद में एज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करोगे, यू फिनिश इट इन 5 years. 5 years. So BBA with law you can do, or BCom with law. In fact, BSc with law is also available. ओके Right, सो एक कंबाइंड डिग्री हो जाती है आपकी 5 सालों में. राइट. ओके सो समथिंग लाइक दिस यू कैन डू. ये हो गया प्रोफेशनल एरिया. नॉन प्रोफेशनल में यू हैव मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इवेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फिनांस. ओके, देयर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम कॉल्ड एज बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फिनांस, दैट इज BAF. ओके वो भी ले सकते हैं बच्चे. सो इफ दे वांट टू गेट इनटू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सो HR, marketing, event management, then advertising, okay, communication studies, okay, journalism, ये सभी आ जाता है उसमें. So that is all part of BBA programs. ओके Logistics and supply chain which is picking up very well. तो ये भी e-commerce अभी इतना कुछ हो yeah, गया, तो but फिर right logistics is also doing very well. तो ये these are the non-professional things you courses. can do. अभी HR का आपने मेंशन किया क्योंकि ताकि इतने बच्चे सीख के इतने पैकेजेस के लिए जाएंगे, लेकिन उनको रिक्रूट करने के लिए तो HR लगेंगे. तो HR में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. Yes. पीपल आर डूइंग, मतलब Yes. स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट. बहुत करते हैं बच्चे, सब करते हैं. दे एंजॉय दिस HR, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट. इनफैक्ट इवेंट मैनेजमेंट इज, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट में है ही क्या, बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस आल्सो. राइट So you can become an independently running your own thing. Yes, Yeah, your own you have your own management setup, you know. company, yes. So that is possible. So even hotel management, BBA in hotel management is available. So if you have a flair for hospitality industry, travel tourism is available. तो ये सब हो गया नॉन प्रोफेशनल. नॉन प्रोफेशनल. बट इनके इसमें भी ये एस्पेक्ट में भी बच्चे शायद जा रहे हैं ज़्यादा. बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं. वही कह रही हूँ ना, अभी उनको ना, वो जो बच्चों को अकाउंट्स करना वो अकाउंट्स करे, कर लेते हैं. बट जिनको अकाउंट्स नहीं करना है तो उनको ये सब भी बहुत सारे कुछ है कि दे कैन ऑप्ट फॉर. ट्रैवल टूरिज्म में भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. culinary arts, they can do that. So a lot of scope is there, and people are now, if you see the extent to which people are traveling, तो aviation आ गया, yes. right? तो shipping आ गया. So a lot of things which are available. So plenty of options. So do not restrict yourself to only like, you know, commerce लिए तो सिर्फ CA ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Sports management is there. Okay. Right. So they can choose something like Yes. this also. मतलब बच्चे जो जिनका हॉबी किचन में है या फिर कुकिंग में है, they can also Photography. have such kind of, yeah, photography also. They can take up design. Right. Irrespective of the stream, they can take design also. ओके. तो मेन स्ट्रीम्स तो हमारे हो चुके हैं, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, एंड इसमें आपने जो बताए अलग अलग कोर्सेज, आई थिंक पीपल आर ऑल्सो लिसनिंग एंड दे मस्ट बी नाउ थिंकिंग कि ये भी कर सकते हैं. बट अगर हम लोग अभी बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ की या आर्ट्स की या कंबाइंड भी, तो उसमें क्या ऑप्शंस करियर हो सकते हैं, बच्चे उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं? Very much. There are students who are taking humanities. Students who have a creative skill, जैसे लिखना आता है, they have an aesthetic sense. Okay, तो वो लोग
who have a different thinking out of the box थिंकिंग तो उन बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ बहुत ही अच्छा है इन द सेंस मीडिया कम्युनिकेशन ले सकते हैं ओके दे कैन इवन गेट इनटू कंटेंट राइटिंग लैंग्वेजेस ले सकते हैं अच्छे लिखते होंगे तो फिर लैंग्वेजेस ओके सो दैट इज़ पॉसिबल देन फॉरेन लैंग्वेजेस दैट इज़ पिकिंग अप यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर लॉ इज़ देयर ओके पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें काफ़ी कुछ करियर बन सकता है अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया एंड देन यू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम्स यू कैन गेट इनटू आईएफएस आईईएस आईएएस वो भी कर सकते हैं ओके डिफेंस है ओके आई मीन वेदर यू टेक अगर डिफेंस की अगर बात करेंगे इफ़ यू आर टेकिंग पीसीएम यू कैन टेक अ बीटेक डिग्री एंड ऑल्सो गेट अ लैटरल एंट्री इनटू डिफेंस ओके सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट ह्यूमैनिटीज़ फिर बाद में डिज़ाइन आ गया तो डिज़ाइन में इफ़ यू आर गोइंग यू कैन गेट इनटू फोटोग्राफी VFX एनिमेशन मल्टीमीडिया ओके दैट इज़ पॉसिबल so there's a loads of careers that are available in humanities also ओके so those who have a creative skill it really works then as I told you media communication is there you can become a PR you can become a communication corporate communicator okay advertising marketing डिजिटल मार्केटिंग यस अभी आपने यूपीएससी की बात छेड़ी है तो आई जस्ट वांटेड टू नो क्योंकि वो एग्ज़ाम्स भी काफ़ी बच्चे देते हैं उसमें ऐसा मैं बोलूँगी नहीं लेकिन होता है कि बहुत सारे साल गवा देते हैं एंड दे एंड अप लैंडिंग इनटू समथिंग विच दे डोंट वांट टू डू एक्चुअली क्योंकि कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है इतने साल गवा दिए हैं और अभी यूपीएससी या एमपीएससी भी हो वो क्रैक नहीं कर पा रहे तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको आगे क्या करना है ये मेरा पहला सवाल है एंड दूसरा इज़ कि अगर एक्चुअली यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी एंड एमपीएससी देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो दे हैव क्रैक्ड इट बट आफ्टर लाइक 5, 6, 7 years ऑफ देयर यू नो एक लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स तो दूसरा सवाल यही है कि अगर यूपीएससी एमपीएससी अगर आपको सीरियसली परस्यू करना है सो व्हाट विल बी देयर थिंग और देयर पाथ व्हाट दे कैन डू अबाउट ऑल दिस थिंग so they can do it after graduation ओके so preferably humanity is preferred दैट इज व्हाट here. आई वांटेड टू आस्क कि स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए कहाँ पे फोकस करना क्योंकि ना यूपीएससी के सब्जेक्ट्स जो है ना हिस्ट्री जोग्राफी ओके और लैंग्वेजेस वगैरह आता है सो दैट इज़ द रीज़न करंट अफेयर्स पता होना चाहिए पॉलिटिक्स पता होना चाहिए सो दैट इज़ द रीज़न यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज़ वुड बी अ गुड चॉइस एंड यूपीएससी इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रैक एब्सोल्युटली राइट तो अगर नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो इफ़ यू आर वेरी हेल्प बेंट कि मुझे करना ही है वेरी पैशनेट अबाउट इट तो यू कैन गिव 2 attempts उसके बाद में यू कैन गेट इनटू यू स्टिल हैव अ BA डिग्री राइट BA इकोनॉमिक्स आई मिस टू से इकोनॉमिक्स विथ मैथ लाइक इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स ये कॉम्बिनेशन में करियर बना सकते हैं ओके इकोनॉमिक्स विथ पब्लिक पॉलिसी करियर बना सकते हैं एंड विथ यू नो whatever it is you have gained knowledge through UPSC you can do a MBA program also after that अच्छा ओके सो देयर आर ऑप्शंस लेफ्ट lot of options available ओके मुझे और एक पूछना था आपको कि स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं तो ऐसा होता था पहले कि आप खेल रहे हो ना तो खेल लो आपका हॉबी है जस्ट मेंटेन टू दैट लेवल एंड बाकी पढ़ाई कर लो खेलना मैदान में छोड़ के वापस घर आना है बट अभी ऐसा नहीं हुआ है अभी लोग स्पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी लाइक सीरियस है उनके बारे में भी सोचते हैं उनके साथ भी करियर कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली कुछ करियर्स है कुछ स्ट्रीम्स 12th के बाद भी लेके उसमें कुछ अलग कर सकते हैं ऐसे कुछ पाथ्स है हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों को या डेफिनेटली इनफैक्ट अगर बच्चा उसने सपोजिंग नीट लिखा दे डिड फिजियोथेरेपी कर लिया स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज देयर ओके BSc कर लिया with psychology sports psychology is there okay there are also courses offered by university like IISM जहाँ पे sports bachelor in sports management available है bachelor in sports science available है there are many more other colleges which are offering these kind of sports related careers okay and IISM primarily in Mumbai offers BSM as well as BSS course okay so Maya college available है okay so या तो देयर लॉट ऑफ करियर्स अवेलेबल और अभी इसमें क्या करियर्स बनेगा ठीक है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर लेंगे तो इट्स मोर ऑफ कॉमर्स विद स्पोर्ट्स तो हो गया मीडिया कम्युनिकेशन ओके देन एनालिस्ट बन सकते हैं
फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ले सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म होके यू कैन कंबाइन, Yeah, you can combine with the sports. so with the sports you can do that. So there's a lot of options. Sports physiotherapy is doing so well. Okay, right. So that is, I mean, science में अगर लेंगे तो sports physiotherapy is there, sports psychology is there. Okay, you can become a fitness coach, nutritionist, Right. तो ये सारे blogs. तो ये सारे कंबाइन करके स्पोर्ट्स में भी यू कैन हैव अ गुड करियर Yes, yes. राइट। 12th में बच्चों को ये बहुत रहता है कि मेरा कॉलेज बेस्ट होना चाहिए या फिर आई हैव टू बी इन अ गुड कॉलेज जो कि जाना माना हो। तो इससे सच में कुछ फर्क पड़ता है आपके करियर में या फिर आपके रिज्यूमे में आगे या फिर आपके पूरे पाथ में, जर्नी में? Yes, it makes difference. ओके तो एक तो है कि brand is there with you. ओके So that is very important. Faculty, amenities, all of these things matter. ओके तो आप जब ग्रेजुएशन करके बाहर आओगे, the product you are will tell from which university you are. ओके So university is important. तो I suggest कि मतलब 12th शुरू होने से पहले keep the list of colleges ready. एग्जैक्टली Okay? क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, Right. वो लिखने होंगे। आपको जब पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, तो आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे? ये करते करते डेट्स निकल जाएंगी निकल फिर। जाएंगे राइट। सो माइट एज वेल स्टार्ट अर्ली। 11th 10th हो गया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। 12th शुरू होने से पहले स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेक अ कॉलेज लिस्ट रेडी. ओके 5 factors are there to consider. One is the fees, okay, location, राइट okay, then the course that they are offering. All of these are the factors, few factors, marks, okay. इसके basis पे आप shortlist करके रखिए. Then start look for the entrance exam dates. Keep those things in mind, and then start applying for the colleges. And then half the work is done. Mostly बच्चे क्या करते हैं 12th के बोर्ड के बाद आते हैं, तो फिर they are already lost a lot of things. एब्सोल्युटली Opportunities already काफ़ी कुछ चला गया, फिर जो बचे कुछ हैं वो रहता है. So if you're looking for something like Mumbai University, तो Mumbai University के merit basis पे रहता है. On the portal you have to apply for it. ओके There are autonomous universities also. That is, they are their own universities. Yes, yes, yes. So you have NMIMS, SP Jain, okay, DY Patil. These are Amity. Yeah, I mean These are few universities. So you can apply to these universities directly, and they have their own entrance exams. ओके ओके So, but start early. Don't wait for the 12 to finish. And when it comes to parents, the most important question comes is the economical angle. You know, क्योंकि अभी ये सारे जो courses है, so इनके फीस स्ट्रक्चर्स भी बहुत अलग होंगे, या फिर अभी जिस हिसाब से ये सब चल रहा है, तो आई थिंक दे माइट बी लाइक थोड़ा हाई एंड भी हो सकते हैं. Right. सो पेरेंट्स को इस सब के बारे में कैसे सोचना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए, या फिर एक माइंडसेट होता है कि मेरा बच्चा अगर एक मेडिकल में जाने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है, तो एक लमसम इतना XYZ अमाउंट आप लोग बचा के रखते हो उसके लिए. तो ऐसे कुछ गाइडेंस आप पेरेंट्स को भी देना चाहते हो जिसके हिसाब से उन्होंने भी थोड़ा इकोनॉमिकली भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यू कांट ऐसे कि हाँ चलो इतना कर दिया, अमाउंट अरेंज हो नहीं सकता हर एक के बारे में. तो हाउ द पेरेंट्स शुड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स? Actually, see, I'll tell you, more than the parents, it is here the students who have to think. क्योंकि अगर there are 2 aspects. One is your marks. Second is your profile. Okay. अगर आप अच्छे marks लाओगे, you can go to the university that you wish to. राइट And I have cases where students have got scholarship, 100% scholarship also. ओके So that is, वो student के ऊपर है. के मेरिट पे हो गया. हाँ. Besides that, there are loans available, Okay. education loan available, which are offered by various financial institutions. So in case they have a crunch for money, so they can also avail the loan. Okay, so take the facility of the loan also. So these are the 2 areas. So if the student is doing very well, they can get excellent marks, and then have a very strong profile. They can go with a scholarship also. Scholarships. There are 2 scholarships. One is a need-based scholarship. The other one is merit. Merit based, yeah. Okay, so when it is merit-based, of course, the student's performance matters. Yeah. Need-based is they can always apply if they are coming from a lower income group. Yes. So they have to submit their documents, Yes. and the university considers whether they should be given scholarship or not. So these are the 2 available. Besides that, there are a lot of government institutions which offers scholarships, both
need based as well as merit Merit based. based, okay. Then there are many communities which offer scholarships, so they can take help from there Yeah, too. yeah. So this way there are a lot of opportunities that are available. You need to keep a track of it, tap it, and take the grab the Advantage, opportunity. grab the opportunities, right. So मैम ट्रेडिशनल कोर्सेज और ये सब बात हमने जर्नी कैसा होता है वो देख लिया. आई थिंक वो अभी पेरेंट्स भी ये हो गए कि क्या करना है और बच्चों से क्या करवाना है, इसमें काफ़ी क्लैरिटी उनको भी आ गई होगी. लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस होंगे जो बच्चों को भी अच्छे लगेंगे, वो उसमें जाना चाहेंगे. ऐसे कुछ करियर पाथ्स है, ऐसे कुछ ऑप्शंस है तीनों स्ट्रीम्स में. अगर बात करेंगे तो कुछ ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस, परमिटेशंस हम दे सकते हैं क्या? हाँ, तो मैंने जैसे बताया था ना, जैसे लाइक बायो प्लस IT ले Exactly, लिया, वैसे कुछ. बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्ट थेरेपी ले सकते हैं. सो आर्ट थेरेपी इज आर्ट एंड साइकोलॉजी. हाउ कैन यू हील पीपल विद आर्ट? Exactly. योगा हाँ, इज़ वेरी अनकन्वेंशनल. फिर उसके बाद में न्यूट्रिशनिस्ट, ओके. आजकल दैट इज ऑल्सो पिकिंग अप. Absolutely. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट इज पिकिंग अप. स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैंने बताया. फिर उसके बाद में somebody I had a typical case where a student took music psychology, combined music psychology, working in an advertising company. Okay. That's interesting. Yeah. So I have people who are made a career in music, sound designing, sound engineering. Yes. Okay. Then then of course the career paths like defense is there. There's a student who came to me who said that he wants to get into weapon designing. Oh. Okay, automobile designing. Okay, so he wants to design the cars. Another student wants to design the weapons. So there are a lot of options available. Then somebody wanted to take up something, and I would suggest take up careers like these, which are going to be in demand in next 5 years, 10 years, like renewable energy. Okay, because non-renewable is getting exhausted, so we have to start working on the renewable energy. Agriculture is picking up so well, so agricultural scientists and all of those things are there. Biofishery is there. Then after that, climate. Because of this global warming, climate changes are there. Environmental science. Okay, then clinical research is there. Okay, so these are some few careers where students can, based on their interests, they can make careers. Above all of this, what is important is your hard work, your commitment. Okay, and do what you love. Do what you are passionate about. So you will not find work as work. You can work even like 24 hours a day. Absolutely. And you won't feel tired because you're doing what you love. Right. So that is a key takeaway here. Yes. और यही हम करने की यहाँ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं. Correct. बाकी बच्चे आपके पास आएंगे और आप उनको अच्छे से गाइड कर ही पाएंगे, लेकिन ये कोशिश रूबरू में हम लोग करते जाएंगे आगे भी. आज मैं उनका आवाज़ बन के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी यही बताना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ योर माइंड, यू कैन सेंड इट टू अस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैम कैन गाइड यू मोर बेटर एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम हर. Sure. एंड मैम, जैसे कि हम लोग ने अभी ये सब ट्रेडिशनल थिंग्स तो देख लिए, कोर्सेज देख लिए, सब पाथ देख लिया, लेकिन देर आर मेनी स्टूडेंट्स, उनका फोकस या ड्रीम जैसे आपने बोला रहता है कि बाहर जाके ही पढ़ना है, अब्रॉड जाके ही सीखना है, पढ़ना है, वहाँ पे सेटल होना है, या फिर वहाँ पे सीख के यहाँ पे आके कुछ करना है. तो उनको भी हम लोग कुछ बता सकेंगे, उनको भी अगर हम लोग गाइड प्रॉपर कर सकेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस एंड टू देम ऑल्सो. Of course. सो हम लोग कंक्लूड करेंगे ये एजुकेशनल टूर इन नेक्स्ट एपिसोड विद ऑल दिस टॉपिक्स. Sure. So for today you have come and you have given enlighten all the students. So thank you so much for that. My pleasure. Any time for you, Anu. Yes. So रूबरू विद अनु में अभी हम लोग यही रुकेंगे. You all stay tuned.